Hello and welcome to Nico Original News Stories. My name is Tarun Karthik. It's a Wednesday. Do remember to watch our bulletin every Monday, Wednesday and Saturday on Nico mobile app, on our Facebook page and on our YouTube channel. Apart from news, Nico is into food delivery and grocery delivery. One can order food and grocery through our mobile app and also offline by calling 844 844 0682. Let's start with the coronavirus updates. Recently, 5 new cases of coronavirus was detected in Andaman and Nicobar Islands, and 20 patients also recovered from the virus. There are 42 active coronavirus cases in the islands now. Altogether from the start, Andaman and Nicobar Islands had witnessed 171 COVID-19 cases, out of which 129 have recovered with 0 deaths so far. Let's move on to the next story. Bharatiya Janata Party has been staging protests throughout the islands since the last few days and has now called for Andaman and Nicobar Bandh on 17th of July 2020. The prominent demands of the BJP includes implementation of central schemes in the islands, end of undemocratic and autocratic rule of the administration, immediate commissioning of Canny OFC at pan-India rates, circle rate revision, problem faced by the tourism industry, problem of teachers and traders, water supply problem of unemployment and non-filling of vacancies by Andaman Nicobar administration, closure of ANCHI scheme and many others. Several sections of the society support Andaman and Nicobar Bandh by BJP. The state party unit has also been spreading the message for the people to reach BJP Bhavan at Middle Point, Port Blair at 9:30 am on 17th of July 2020 to be a part of the movement. Let's move on to the next story. The National Students Union of India Andaman and Nicobar Island chapter today staged protest at Gandhi Statue, Aberdeen Bazaar against the orders of the University Grants Commission to conduct the exams of the final semester students before September 2020. NSUI has been running online campaigns since weeks for the cancellation of the exams and have now resorted to street protests. The protest today was supported by Shri Kuldeep Rai Sharma, Member of Parliament, Andaman and Nicobar Islands, and also the President of Pradesh Congress Committee. Mr. Kuldeep Rai Sharma spoke to Nico. Let's hear in what he has said. देखिए, जैसे अभी आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है NSUI, वो पिछले एक हफ्ते से पूरे देश के अंदर में ये जो मुहिम है कि जो UGC के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकला कि जो फाइनल ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, जिस तरीके का बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो नहीं हुआ उसी तरीके का ये एग्ज़ाम का डिमांड है कि नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, देखिए, ये जो NSUI के द्वारा जो मुहिम पूरे देश में जो छेड़ा गया जो हो रहा है, ये एक बहुत ही जायज़ डिमांड है, क्योंकि हम सबको पता है कि आज पूरा दुनिया के साथ साथ हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो देश है, और ख़ास तौर पे हमारा जो प्यारा सा अंडमान निकोबार द्वीप है, इसके अंदर में भी हम लोग को पता है कि कोरोना का बहुत बड़ा मात्रा में आज लोग इसका शिकार हो रहे हैं, लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। और इस समय में जब लोगों का जान का खतरा है और जान का खतरा होते हुए अगर हम आज लोगों का जो माली हालात है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लोगों का जो मानसिक हालात है वो ठीक नहीं है। आपको पता है कि 3 महीने से लॉकडाउन था। भारत देश आमतौर पे गरीब देश है, मजदूरों किसानों का देश है, जिसमें 70% लोग गरीब हैं। और अब उनको अगर हम लोग उनके बच्चों को हम लोग अगर ये फोर्स करें कि एग्ज़ाम अभी देना, एग्ज़ाम तो देना, ऐसा नहीं देना की बात नहीं है, मगर ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति में क्या एग्ज़ाम देना जायज़ है? क्योंकि पिछला 3-4 महीने से बच्चों का पढ़ाई नहीं हुआ, और ये जो अब वो आज एग्ज़ाम आप करेंगे, तो सबसे पहला जो चीज़ है कि उनका सेफ्टी फैक्टर है, उनका हेल्थ का इश्यूज़ है कि आज कोरोना जिस तरह से देश के अंदर में जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो लोगों का, हमारे खास तौर पे हमारे नौजवान पीढ़ी, जो देश का आने वाला देश का जो भविष्य है, आज हमारा जो भविष्य को लेके हम आज नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारा देश के जो लोग नौजवान पीढ़ी, बच्चों को अगर घर से बाहर निकले, अगर वो इस इन्फेक्शन से, कोरोना से अगर पीड़ित होते हैं, तो आज उनका पास में इलाज करने का पैसा नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसी परेशान है, फिजिकली भी परेशान होंगे, पूरा परिवार परेशान होगा। तो इसके लिए जैसा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को ये जो मार्क्स देके जो उनका परफॉर्मेंस बेसिस में पास किया गया, तो ये अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं कि नहीं कर सकते, कि हमको अपना आने वाला देश का पीढ़ी को देखना है कि हमारा देश का नौजवान पीढ़ी आने वाला समय सुरक्षित हो। क्योंकि ये एग्ज़ाम के जस्ट बाद वो भी अपना प्रैक्टिकल लाइफ में, अपना ज़िंदगी का जो प्रैक्टिकल फील्ड में निकलेंगे, जहाँ पे जॉब का तलाश करेंगे,
और ये मार्क्स इनका बहुत बड़ा एक पैरामीटर रहेगा कि उनका आने वाला फ्यूचर में किस तरीके का उनको नौकरी मिले, किस तरीके का उनको ज़िंदगी में जगह उनको पोजीशन मिलेगा। तो ये जो डिमांड जो करा है जो हमारा NSUI इवन जो कांग्रेस पार्टी का, मैं ये समझता हूँ कि बहुत जायज़ डिमांड है और मैं आपके द्वारा इस धरने के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन और भारत सरकार और ख़ास तौर पे UGC को जो है आपका उनको ये निवेदन करूँगा, विनती करूँगा कि जैसे पूरे देश के अंदर में जो चल रहा है ये धरना, इसका को देखते हुए नौजवान बच्चों का सेफ्टी को देखते हुए, उनका हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए, उसका जो मेडिकल इश्यूज़ को देखते हुए ये एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए। और दूसरा उसमें और एक जो इशू है जो इस धरने के साथ में जो लगा हुआ है, संबंधित है, वो ये है कि आपका जो फीस देने का बात हो रहा है। तो जो गरीब लोग के पास में आज खाने का पैसा नहीं है, आज अगर उनके बच्चों को आप फीस देने की बात करें तो मैं नहीं समझता कि उनके पास फीस होगा वो फीस दे पाएंगे। तो ये दोनों डिमांड जायज़ है और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भारत सरकार को, HRD मिनिस्ट्री को ये दोनों डिमांड के ऊपर बात करना चाहिए, उनका डिमांड को मानना चाहिए। Further, Nico spoke to Mr. M.A. Sajid, State President NSUI. Let's hear in his comments on the protest. आज जो NSUI ने आज धरना का जो आयोजन किया है, ये धरना हमारे के दीपक सांसद कुलदीप राय शर्मा जी के लीडरशिप में हुआ है और यह धरना करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उन्हें मास प्रमोट किया जाए। और आज जो हमने डिमांड रखा है मास प्रमोशन का, इसलिए रखा है क्योंकि जब अप्रैल मंथ में जब हमारे देश भर में जब पूरा कोरोना का 5000 केसेस था, उस समय सरकार एग्ज़ाम ना लेते हुए आज जुलाई मंथ में हमारे पूरे देश भर में लगभग 8 लाख केसेस हो चुका है। और मुझे लगता है जो सरकार का डिसीज़न है, UGC का डिसीज़न है कि एग्ज़ाम सितंबर मंथ में होना है, मुझे लगता है कि केसेस रुकने वाला नहीं है और ये केसेस बढ़ेगा। और जब ये केसेस बढ़ेगा तब प्रॉब्लम ये होगा, जो क्लासरूम में जो बच्चों का एग्ज़ाम होगा, अगर क्लासरूम में कोई भी एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव आता है तो अब मान के चलिए वो केसेस जो वो कोरोना केसेस रहेगा ऊपर क्लास को फैलाएगा और जो कोरोना जिसको पॉजिटिव आएगा और जिससे कांटेक्ट में आएंगे उन्हें भी पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए आज हमारा डिमांड सरकार से एक ही है कि जो भी बच्चे फाइनल ईयर में हैं उन सबको मास प्रमोट किया जाए। As part of the ongoing protests across the islands, the BJP Mandal unit at Hadbay yesterday staged protest in front of Tahsil office and demanded the end of undemocratic and autocratic rule of the administration. About 90 protesters had gathered in front of Tahsil office Hadbay for the protests. Nico has received footage of the protests from Hadbay and we also spoke to Mr. Parma Shivam, Mandal President of BJP Hadbay. Go back! CS, go back! Go back! Go back! CS का तानाशाही नहीं चलेगा! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, CS का तानाशाही नहीं चलेगा! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, CS का तानाशाही नहीं चलेगा! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, CS का तानाशाही नहीं चलेगा! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, CS का तानाशाही नहीं चलेगा! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। IS राज बंद करो! बंद करो, बंद करो, IS राज बंद करो! बंद करो, बंद करो, IS राज बंद करो! बंद करो, बंद करो। IS का मनमानी नहीं चलेगा! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, IS का मनमानी नहीं चलेगा! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, IS का मनमानी नहीं चलेगा! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सिंपली देना पड़ेगा! देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, सिंपली देना पड़ेगा! देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, सिंपली देना पड़ेगा! देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। समिति को वापस लाओ! वापस लाओ, वापस लाओ, समिति को वापस लाओ! वापस लाओ, वापस लाओ, समिति को वापस लाओ! वापस लाओ, वापस लाओ। LG go back! Go back, go back, LG go back! go back, go back, LG go back! go back, go back, CS go back! go back, go back, CS go back! go back, go back, CS go back! go back, go back। प्रेसिडेंट है आप जी। तो सर कल आपने जो धरना कंडक्ट किया था तो उसमें क्या क्या आपका डिमांड था और लाइक क्या क्या हुआ था उस धरना में कल वहाँ पे? नहीं, डिमांड हमारा एक ही था, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बात नहीं सुन रहा है। ओके जी। ठीक है जी। क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा आपको मुआवजा दिया है जी। सेंट्रल में, जी। लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड में उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जी।
ठीक है। जी और सेकंड थिंग है ये कोरी जो मैटर आर्डिनरी निकला था मन का जो पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड का जो कोरी है, जी सर जी। ठीक है। अच्छा हमारे उसके यहाँ कोरी होते हुए मेलैंड से मटेरियल मंगा रहा है, जी CS और LC, जी ठीक है। हम बहुत सारा मुद्दा हम लोग यहाँ से लेटर लिखे, लेकिन कोई किस्म का हम लोग का जवाब नहीं दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। जी सर ओके ठीक है। हम लोग पूरा 5 पंचायत है और जी। एक इसका निकोबारी बस्ती है। टोटल जी। 6 जगह है हमारा, 6 पंचायत सोचिए। जी पूरा 6 पंचायत लोग जो है 80 से 90 लोग थे उधर में। ओके जी ठीक। और कुछ पूछना चाहते हैं? सर ये मतलब आप लोगों ने सिर्फ धरना किया कि रैली भी निकाला था सर धरना के साथ साथ? हम लोग धरना किया है तहसील ऑफिस के सामने, तो धरना किया है। ओके ठीक है। फिर तहसीलदार से आपका बात हुआ था इस मामले में कुछ, वहाँ पे जो तहसीलदार पोस्टेड है उनसे? हेलो हाँ जी सर, हमने पूछा तहसीलदार से कुछ बात हुआ था इस बारे में आपका? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ ओके कुछ नहीं हुआ। ठीक। The results of the 12th standard CBSE was recently released, and the students from Andaman Nicobar Islands have performed considerably better than the last year. The overall pass percentage this year stands at 95.06%, and 23 schools have given 100% result in the islands. An increase of 11% was seen compared to the last year in the pass percentage. Meanwhile, CBSE has also released class 10th results, and official word from the education department is awaited for the overall pass percentage of class 10th students. That's all in today's news bulletin. Download the Nico app, subscribe to our YouTube channel, and follow our Facebook page to stay updated with the latest Andaman and Nicobar Island news stories. Thank you.